What's up, guys? How are you? Hope all are you doing good. So today is our lecture number 22 in the series of C language basics programming. Okay, guys. So in previous video we studied about structures and its type and some more about array of structures. So in this video we are covering two topics related to arrays. First one is binary search and second one is linear search. Okay, guys. So let's start it and try to cover these topics from complete level. Okay, guys. So let's start. So we will understand from first topic, that is actually linear search. So first understand what is linear search. So linear search is basically a search in which we try to find out a particular element. Let's make one array here, which is like 3, 2, 4, 5, 6 and 7, and if we want to search that here it is any element present whose value is actually 5. Okay, so how we do that in array? So this is all we do using linear search. Okay, so let's try to understand how we do that. So we start from index 0. Okay, so here index is 0, 1, 2, 3, 4, 5, and the element which we have to search, we have to store it in a variable whose name is actually key. Okay, so we start from index 0 and we will compare it that its value is either equal to key or not. If equal to key, then we have to return its index, and if it is not equal, then we have to move forward. So let's start from index 0. So we will compare that if array 0 is equal to key. No, it is not. Then what we have to do? We have to move next index, which is equal to 1. Okay, now we search for same as array 1. Is it equal to key? Not. Then what we have to do? We have to move to next index, and here it is not equal to again. Then we move to next index for index 3. At index 3, if we search, then what we get? We get that it is equal to key. Then what we have to print? We have to return its index, which is 3. Okay, so this is the process through which we can search an element in an array by linear search. Okay, so what is its code? I will try to tell you the basic logic of this code. Okay, so let's start here and try to write this code. Okay, so what you have to first make an array a of 5 in which you have to store element like 1, 2, 3, 4, 5. Then what we have to do, like we have to search a element int key whose value is actually, let's take it 4. And now what we have to do, we have to just run a for loop for int I is equal to 0, I is less than 5, I plus plus. And inside this for loop, what we have to do basically, just we have to run check a condition. If a sorry just give me 1 minute. If a of I is equal to key value, if it is this condition is true, what we have to do, we have to simply printf percentile d value of its index. If it is not matched to it, what we have to do, simply we have to print nothing here. Okay, by this loop we can do that. If any of condition is not here, check what we have to do, simply we have to return 0 statement we have to return. And this by this method we can get direct value of index at which the particular element is present or not. Okay,
So this is the method for linear search. Now we see a second method, that is actually binary search. So let's understand about concept of binary search, and it is very important for you in further courses of like DSA and competitive programming. What actually you want to do in further studies, you can easily use that binary search. So for doing binary search, what we have to use in array. This is a array. So what is the prerequisite of doing binary search? So for performing binary search, let's take one note here. For performing binary search, what we have to do? For performing binary search, we have to make array in sorted order. Okay, so if we want to use binary search for a particular array, then what we have to use? We have to just try to make your given array sorted form. Okay, so how we do that sorted form? So for sorted form, we basically know that this is an array 1 3 5 6 8, and here 2, next is 4. So this is a given array. Like take one example here. So this is an array. So first what we have to do, we have to sort it. So after sorting, what we get, the given array will be like this. First is 1, second is 2, third is 3, 4, now 5, 6, now 8. So this is an array which we try to sort out. Okay, तो सॉर्ट करना है सबसे पहले एरे को, ये चीज अपन देख लेंगे। अब सॉर्ट कैसे करते हैं वो अब नेक्स्ट वीडियो में समझ रहे होंगे। इस वीडियो में आप लोग इतना समझ लीजिए कि जो एरे बाइनरी सर्च के लिए आपको लेनी है वो किस ऑर्डर में होनी चाहिए, सॉर्टेड ऑर्डर में। अब सॉर्टेड ऑर्डर में लेने के बाद सेम वही प्रोसेस, एक मान लिया हमें एलिमेंट सर्च करना है 2, क्या 2 प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, तो ये कैसे कर रहे होंगे इस चीज को अपन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और ये सेम ऐसे एक एरे बना लेते हैं। ओके, ये मान लिया हमारी कोई एरे है 1 2 3 4 5 6 8, and we have to search a particular key value, that is actually 2. If this key value is present, what we have to do? We have to simply return its index value 1 2 0 1 2 3 4 5 6. Okay, so if this particular element 2 is present in this array, we have to simply return its index. So how we do that? Let's understand it. So simply we have to use three terms here. First is actually lower limit, and second is its higher limit, and third is its mid value. ओके, सो लोअर लिमिट आपकी क्या होती है ये सबसे पहले समझ लेते हैं। सो लोअर लिमिट इज एक्चुअली द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ योर एरे। सो दिस इज योर लोअर लिमिट, सॉरी गिव मी जस्ट 1 minute. So this is your L. Okay, L means lower limit, and this is your higher limit, and the mid value will be L plus H by 2. So L plus H by 2. So this is your higher value. So actually what we do here, L की वैल्यू क्या है आपकी, लोअर इंडेक्स की 0 और हायर इंडेक्स आपका कितना है 6। तो जो आपकी मिड वैल्यू होगी वो होगी 3। इंडेक्स 3 इज योर मिड वैल्यू। ओके, दिस इज योर mid value. Now what we have to do here, just we have to check a condition. फर्स्ट कंडीशन ये है कि इफ की वैल्यू इज लेस देन मिड। ओके, सॉरी, यहां पे लेस से पहले एक चीज और चेक कर लेते हैं। क्या करना है अपन को, इफ की वैल्यू इज इक्वल टू मिड, देन वी हैव टू रिटर्न मिड वैल्यू।
वी हैव टू रिटर्न मिड वैल्यू। अगर जो हमें एलिमेंट सर्च करना है उसकी वैल्यू अगर हमारी मिड एलिमेंट से मैच कर जाती है तो सिंपली उसको क्या कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे। अगर मान लिया 4 सर्च करना होता है यहाँ पे, तो 4 हमारा मिड से मैच कर जाता तो हम क्या सिंपली रिटर्न कर रहे होते 3। सेकेंड कंडीशन है कि इफ की वैल्यू इज लेस देन मिड वैल्यू। अगर की वैल्यू हमारी जो है वो, देखो की वैल्यू अभी 2 है हमारी, ठीक, और मिड वैल्यू कितनी है अभी हमारी, मिड की वैल्यू 4 है, ठीक। तो 2 हमारा क्या है, 4 से लेस है। तो अब हमें क्या करना है, जब 2 हमारा 4 से लेस है तो हमको सिंपली करना क्या है, देन मूव हाई, जो h वाला है उसको कहां लेके आ जाना है, यहां पे मिड -1 पे लेके आ जाना है। मूव हाई टू मिड -1। सिंपली इतना अपन को करना है कि जो हाई वाला है h को यहां पे ले आना है, ठीक। तो अब h यहां पे आ गया, ठीक। लेट्स चेंज द कलर सो दैट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड इट। सो यहां पे अपन अब h ले आए, ठीक, h को यहां पे लेके आ गए, ठीक। अब h यहां पे आ गया, l आपका ये है, सिंपली फिर से प्रोसेस वैसे ही करेंगे। अब l प्लस h क्या हो जाएगा, आपका जो l है वो अभी भी 0 है, ठीक। h कितना है आपका 2 है, तो 2/2 करेंगे, ठीक। 0 प्लस 2/2, क्योंकि h हमारा 2 था तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो अब ये किसकी वैल्यू है, एक्चुअली ये मिड की वैल्यू है। तो अपन देखेंगे क्या जो इंडेक्स 1 है उस पे हमारा जो एलिमेंट है वो की के इक्वल है, हाँ, कंडीशन ट्रू हो गई। तो आपको क्या करना है, सिंपली रिटर्न कर देना है। यहां पे भी क्या रिटर्न कर रहे होंगे, मिड रिटर्न कर रहे होंगे। थर्ड कंडीशन क्या है कि इफ अगर मान लिया अब भी ना मिला होता तब क्या कर रहे होते अपन, इफ अगर मान लिया की वैल्यू हमारी ग्रेटर हो जाती, मान लिया अगर यही हमें पर्टिकुलर 6 चेक करना होता तो क्या है, की वैल्यू हमारी ग्रेटर है, तब क्या करेंगे, की वैल्यू इज ग्रेटर देन मिड वैल्यू, ओके सॉरी, देन मिड वैल्यू। जब ऐसी कंडीशन आ जाए इफ की वैल्यू इज ग्रेटर देन मिड वैल्यू, उस टाइम पर क्या करना है, हमको करना ये है, यहां पे सॉरी ये देन था, देन मूव L टू मिड +1, ठीक। तो अब अगर हमें यहाँ पे पर्टिकुलर 6 सर्च करना होता तो क्या करते, मिड हमारा यहाँ पे था, h यहाँ पे था, तो अब l को एक पॉइंट आगे ला रहे होते, कुछ नहीं करना था, सिंपली एक पॉइंट आगे, मिड के एक पॉइंट आगे ला देते। तो अब हमारा क्या हो जाता, l हो जाता 4, ठीक, h हो जाता 6, ठीक। तो अब सर्च करते मिड इज इक्वल टू l प्लस h/2, ठीक। तो इसकी वैल्यू क्या आती, 5 आती, ठीक। 5 पे चेक करते, 5 पे कंडीशन हमारी देखो क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो वैल्यू जो हमें चाहिए थी वो वैल्यू हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल गई, तो क्या कर देते, सिंपली रिटर्न कर देते मिड। लेकिन एक बात और याद रखिए, अगर यहां पे फिर से वैल्यू ना मिलती तो अगेन मान लिया अगर हमारा 5 पे आ जाता, ठीक, मिड की वैल्यू अगर मान लिया 4 आ जाती, ठीक, तो कंडीशन सही होती नहीं। तब क्या कर रहे होते हम, तब कर ये रहे होते कि फिर से प्रोसेस वही करते, चेक करते कि क्या की वैल्यू जो हमारी है वो लेस देन मिड है, अगर ऐसा है तो हम मिड को h को मिड -1 मतलब एक और जो मिड था उससे एक पॉइंट और पीछे ला रहे होते, और अगर की वैल्यू ज्यादा आ रही होती तो मिड के एक पॉइंट आगे ले जा रहे होते l की वैल्यू को, ठीक। तो इस मेथड से करते हैं। अब इसमें सबसे समझने वाली बात यह है कि इसको अगर मान लिया ये कंडीशन कहां पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मतलब हम चेक करना बंद कर देंगे कि इसमें ये एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, तो वो उसकी वो कंडीशन क्या हो रही होगी जिस कंडीशन के बाद इसको पता लग जाएगा कि इसमें ये पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है। तो वो कंडीशन कौन सी होती है, वो कंडीशन हमारी ये होती है इफ एल की जो वैल्यू है हमारी जब तक कि लेस देन आर इक्वल टू एच रहे, कभी भी एल की वैल्यू एच से ज्यादा ना हो पाए, और जैसे ही एल की वैल्यू एच से ज्यादा हुई से उसी कंडीशन पर आपको क्या कर देना है, बता देना है कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट या ये की एलिमेंट इस पर्टिकुलर एरे के अंदर प्रेजेंट नहीं है।
ठीक, तो ये चीज हम आपको समझा दिए कि कैसे करना है। अब इसका सिंपली कोड देख लेते हैं कि कोड क्या होगा। तो सिंपली जैसे कोई एरे अपन बना लिए, ठीक, तो एरे के अंदर जैसे एल, ठीक, एच, ये सारी चीजें बना लेना अपने, ठीक, अपने हिसाब से। तो करना कुछ नहीं है, सिंपली करना ये है कि एक कंडीशन, सबसे पहली जो कंडीशन है वो तो यही चेक करनी है कि जो एल है वो क्या नहीं होना चाहिए, एल हमेशा होना चाहिए, एल इज लेस देन आर इक्वल टू एच होना चाहिए, ये कंडीशन। अब उसके बाद क्या सर्च करना है, फिर सर्च ये करना है कि ए आर आर मिड, जो एरे का मिड एलिमेंट है, मैंने क्या बताया था, वो अगर इक्वल टू आ जाए किसके, की वैल्यू के आपकी, तो क्या कर देना है आपको, सिंपली रिटर्न कर देना है मिड, ठीक। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ये कंडीशन सही नहीं हुई, तो उसके बाद क्या करना है, अगर मान लिया कंडीशन ये हो गई कि जो हमें एलिमेंट चेक करना है ए आर आर मिड इज नॉट, क्या है, अगर ए आर आर मिड की जो वैल्यू है, अभी मैंने बताया था कि वो की से क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, ए आर आर मिड की वैल्यू जो है वो की से छोटी हो जा रही है, ठीक। तब आपको उस कंडीशन में क्या करना है कि ए आर आर मिड जो है वो की से छोटा है, ठीक। तो उस कंडीशन में हमें करना क्या होता है, हमने बताया था अभी आपको कि जो हाई को है मिड -1 कर देना होता है। तो सिंपली करना यहाँ पे ये है कि मूव हाई एच इज इक्वल टू मिड -1, ठीक। और उसके बाद क्या करना है, एल्स, इफ एल्स में क्या कर देना है, अगर इनमें से कोई कंडीशन नहीं आ रही है तो सिंपली लो को क्या करना होता है, मिड +1 करना होता है। तो ये कंडीशन अपन देख लिए कि कैसे कर रहे होते हैं, ठीक। अब उसके बाद इतना करने के बाद करते क्या है, सिंपली अगर एलिमेंट जो हमारा है वो मिल जाता है तो ठीक है, और अगर नहीं मिल रहा होता है तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये कंडीशन जैसे टर्मिनेट करेगी यहाँ पे, ऑटोमेटिक हमें बता देगा लूप कि आपके के अंदर इसमें एलिमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक। तो उसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, इफ एल इज ग्रेटर देन एच, ठीक, ये कंडीशन है। तो आपको क्या प्रिंट कर देना है, सिंपली एलिमेंट नॉट फाउंड, प्रिंटफ एलिमेंट नॉट फाउंड, ये कंडीशन चेक कर लेंगे अपन, ठीक। तो ये चीज देख लिए, इस तरह से अपन बाइनरी सर्च कर रहे होते हैं। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि कैसे ये वैल्यूज को अपन यूज कर रहे होते हैं, बाइनरी सर्च का यूज करना होता है। अब इसका जो यूज है, आप लोग अपनी तरफ से अलग अलग एरियाज लीजिए और उसके अंदर पार्टिकुलर एलिमेंट्स को सर्च करने की कोशिश कीजिए, तभी आप अच्छे से समझ सकते हैं गाइज, ठीक। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और सीखेंगे कुछ और अमेजिंग ऐसे ही टॉपिक्स। और अगला जो वीडियो आपका हो रहा होगा वो आपका फाइल हैंडलिंग के रिगार्डिंग होगा, तो उसमें समझेंगे अपन लोग अच्छे से फाइल हैंडलिंग के बारे में। तब तक के लिए सीखते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए। थैंक यू गाइस।